Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Tarun Sharma. In this video, I will explain a task of chapter 7, working with Microsoft Word. Okay, let us discuss our first tables. Do you know what is the table? A table is used to organize information into rows and columns. That means, we can say that table is a collection of row and columns. रो और कॉलम से मिलकर हम क्या बनाते हैं, टेबल्स को इनिशियलाइज करते हैं. इन दिस टेबल्स, दिस इज द रो एंड दिस इज द कॉलम. Okay, and this part is indicate a cell. This is the cell. Rectangular box is called cell. Okay, a cell can hold text or graphics. जो भी हमारा जो डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स होते हैं इसमें जो टेबल्स में, उसमें हम अपना टेक्स्ट जो भी राइट करना चाहें वो राइट कर सकते हैं, और जो भी ग्राफिक्स हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, द कॉलम्स आर वर्टिकल डाटा एंड हॉरिजेंटल डाटा इज कॉल्ड ए रो. जो वर्टिकल डाटा जो हम एंटर करते हैं वो कॉलम्स होता है, और जो हॉरिजेंटली डाटा जो एंटर होता है वो आपके रो होती है. ईच इंडिविजुअल यूनिट्स इज कॉल्ड ए सेल. ओके, डन. How can create a table? We can create a table. There are many ways to create a table. First, the simplest way by clicking table from the table group on the insert tab. Select the number of columns by dragging the mouse over the small boxes. This insert a table with the specified number of columns and row. Okay, a simple step to follow this step for create a table. Step first is that on the insert tab, click table option from the table group. Okay, from the drop down list, select insert table option. You will see the insert table dialog box. In the table size section, enter the number of columns and row you want in your table. That means जितने आप रो और कॉलम्स को इंसर्ट करना चाह रहे हैं आप उसमें से सेलेक्ट करेंगे और अपने टेबल को क्रिएट करेंगे. ओके, you see in this diagram, this is the cell, different types of boxes. आपको जैसे कि 2x2 की बनानी है तो 2 लेफ्ट वर्टिकली और 2 हॉरिजेंटली आप सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, देन ओके करेंगे, और आप नंबर ऑफ रो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो और नंबर ऑफ कॉलम्स. इट इज़ द फर्स्ट मेथड एंड दिस इज द सेकंड मेथड टू इंसर्ट अ टेबल. ओके, और नेक्स्ट इज मूविंग एंड resizing a table. Moving a table, when you click on the table you will notice a plus sign at the left corner. ओके, जैसे कि आप टेबल्स के लेफ्ट कॉर्नर में आप माउस के कर्सर को लेके जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली हल्का सा प्लस साइन आपको शो होगा. आपको क्या करना है, दिस टेबल मूव हैंडल्स, वो एक हैंडल है जिससे टेबल को मूव कर सकते हैं. उसे प्रेस करेंगे माउस से और उसे जहाँ पे भी आपको टेबल को शिफ्ट करना है, मूव करना है, आप इजीली कर सकते हैं. ओके, द फर्स्ट इज place the pointer on the table move handle until a plus sign appears at the end of the mouse pointer. The next step, drag the table to any part of the document and then release the mouse button to place the table there. Okay, you follow two steps for move a table. And resizing a table, a small hollow square at the right corner of the table is called a table resize handle. टेबल के राइट कॉर्नर पे एक छोटा सा होलो साइन होता है प्लस का, जिससे आप टेबल को रिसाइज भी कर सकते हैं. ओके, यू सी इन दिस इज दिस साइन. डन. नेक्स्ट पेज इज दिस, inserting row and columns. How can insert a row and columns? Step to add row and column.
पोजिशन द कर्सर इन द टेबल, जहाँ पर आपको रो एंड कॉलम को इंसर्ट करना है, उसको वहाँ पर जो कर्सर की जो पोजीशन होती है आप उसे क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन द प्लेस इन द टेबल यू वांट द रो और कॉलम टू बी इंसर्टेड। और सेकेंड स्टेप, ऑन द लेआउट टैब क्लिक इंसर्ट राइट और इंसर्ट लेफ्ट फ्रॉम रो एंड कॉलम। और स्टेप थर्ड, similarly keeping the cursor on any rows, click insert above, insert below। there are different types of option आपके सामने होंगे। इस टाइप से आपको जो रो इंसर्ट करनी है वो above करनी है, below करनी है, left करनी है एंड right अकॉर्डिंग टू यूज़र चॉइस। दैट मीन्स जो हमारी चॉइस है, हमें जहाँ पर इसकी रिक्वायर है उसके अकॉर्डिंग हम इंसर्ट कर सकते हैं। Selected row and columns. Row and columns or the entire table can be selected by clicking the particular row, columns or table and then using the layout tab. Multiple rows or columns can be selected by just dragging the mouse on the row and columns. अगर आपको एक से ज़्यादा रो को सेलेक्ट करना है तो आप माउस को पहले लेफ्ट की को उसे प्रेस करेंगे किसी भी रो पर और उसके बाद माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। दैट मीन्स मूव करोगे फ्लैट सरफेस पे उसे अप एंड डाउन। ओके, उससे बहुत सारी रो आपकी सेलेक्ट हो सकती है। और सिंपल यू कैन फॉलो दिस स्टेप। स्टेप फर्स्ट इज दैट क्लिक ऑन द रो एंड कॉलम टू बी सेलेक्टेड एंड स्टेप सेकेंड, ऑन द लेआउट टैब क्लिक सेलेक्ट आइकन फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप, ए मेनू अपीयर। एक मेनू आपका अपीयर होगा जिस टाइप से। क्लिक द सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो और सेलेक्ट टेबल। ओके, इट शो द रो कॉलम सेल मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम सेलेक्टेड। ओके, दिस इज द मल्टीपल रो कॉलम सेलेक्टेड। फर्स्ट रो सेलेक्टेड, इसमें टेबल सेलेक्ट हो रही है आपकी एंड इसमें कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं, इसमें मल्टीपल रोज सेलेक्ट हो रही है। दिस आर द डायग्राम शो द डिफरेंट ऑपरेशन। और नेक्स्ट पेज इज deleting row and columns. Row and column cell and the entire table can be deleted using layout tab. आप layout tab के थ्रू जो भी आपको रो डिलीट करनी है आप डिलीट कर सकते हैं और आपको जो भी रो आपको ओके we can follow this step to delete a row or column from a table. Step first is that select the rows or columns in order to delete. Second step, on the layout tab click delete option this and from the row and columns groups a menu appear। एक आपका मेनू अपीयर होगा, उसमें से आप क्लिक डिलीट रोज, डिलीट कॉलम्स एंड अदर्स ऑप्शन। दिस इज द मेनू, सेलेक्ट जो आपको ऑप्शन को करना है। ओके, नेक्स्ट इज मर्जिंग सेल। कंबाइनिंग टू और मोर सेल इन द सेम रो और कॉलम्स इनटू ए सिंगल सेल इज कॉल्ड मर्जिंग। अगर आप एक या एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा सेल्स को एक ही सेल में कन्वर्ट करना चाहते हो, मर्ज करना चाहते हो, तो उसे मर्जिंग ऑफ सेल कहते हैं। सिंपली कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल is called in a single cell is called merging. Okay, done. Step 2, merge a cell. First step is that select the cell horizontally or vertically. जो भी आपको सेल मर्ज कर रहे हैं आप उन्हें सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि इसमें जो सेलेक्ट हो रहे हैं। ओके, दोनों सेल उसने नेम और क्लास को सेलेक्ट किया। आफ्टर दैट स्टेप सेकेंड, ऑन द लेआउट टैब क्लिक मर्ज सेल आइकन फ्रॉम द मर्ज ग्रुप। क्लिक मर्ज आइकन पे आपको क्लिक करना है और ये दोनों सेल क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। ओके, सिंपली नोट द मर्ज सेल ऑप्शन गेट्स इनेबल ओनली व्हेन यू सेलेक्ट द सेल और रोज यू वांट टू मर्ज। ओके, जब इनेबल होता है जब आप सेल को या रो को सेलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग द सेल। स्प्लिटिंग, this is the reverse of merging process. You can split a single cell into multiple cell. ये इसका एकदम रिवर्स होता है। जैसे कि आपने बहुत सारे सेल को मर्ज करके एक सिंगल सेल बनाया था, आप उस सिंगल सेल्स को
फिर अगेन जो भी आपने मर्ज किए थे आप उनमें डिवाइड कर सकते हो। सिंपली आप यू कैन से दैट ब्रेकिंग अप ऑफ ए सिंगल सेल इन अ टेबल इनटू मल्टीपल सेल, okay, is called splitting of the cell. Clear? This is the step to follow. This first step, click in a cell or select multiple cell that you want to split, and step second, on the layout tab click split cell from the merge group. The split cell dialog box appear, and after that step third, select the number of columns or rows you want to split the selected cell into. ओके, दैट मीन्स सिंपली जैसे आपको जो सेल को स्प्लिट करना है उसे डिवाइड करना है डिफरेंट सेलों में, उसे आप पहले सेलेक्ट करेंगे और देन आप इस स्प्लिट ऑप्शन को आप सेलेक्ट ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज इज दिस। Preview and printing document. Previewing and printing document. Let us discuss the first preview a document. Print preview is the way one can see what the document look like when it would be printed. That means जैसे कि आप कोई पेज प्रिंट करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने वर्क कर लिया है एमएस वर्ड में, एक एप्लीकेशन राइट कर ली, लेटर राइट कर ली, अब आप उसे प्रिंटेड करना चाह रहे हैं, तो बिफोर द प्रिंटेड अ पेपर आप उससे पहले प्रिंट करने से पहले कुछ पेपर्स उसके प्रिंट को देखना चाह रहे हो कि उसकी स्क्रीन कैसी है आ रही है, उसमें वर्ड्स कितने आ रहे हैं एक पेजेस में, उसका पैराग्राफ किस फॉर्मेट में आ रहा है, तो आप उसे इस प्रीव्यू ऑप्शन से चेक कर सकते हो। इन दिस डायग्राम यू सी दिस ऑप्शन। ओके, simple print preview is the way one can see what the document look like when it would be printed. Okay, done. Next is printing a document. Printing in Microsoft Word comes with so many options that you will be surprised. You can print a range of pages, only odd or even page. आप जैसे कि आपके साथ डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस हैं 20, 30, आप उसे इवन में भी प्रिंट कर सकते हैं पेजेस को, और ऑड ऑप्शन में भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सेलेक्ट टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। फर्स्ट स्टेप, ऑन द फाइल टैब क्लिक द प्रिंट ऑप्शन फ्रॉम द बैकस्टेज व्यू, एंड स्टेप सेकेंड, ऑन द प्रिंटर सेक्शन select the name of printer, and third is specify the number of copies to be printed in the copies box, and step fourth, to print a page or range of pages specify page numbers in the page box under the setting section, and step 5, to change page orientation use portrait orientations from the setting section and select the orientations you want. Okay, next step 6, to set page size use letter from the setting action and select the page size you want. Simply we can say that आपको अगर पेज में प्रिंटिंग करना है डॉक्यूमेंट को, तो एक शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हो Ctrl+P फॉर प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। ओके, आप जैसे प्रिंट करते हो उसमें आप अपने पेज सेट कर सकते हो, आपको कौन से पेजेस आपको प्रिंट करने हैं, इवन करने हैं, ऑड करने हैं, या कितने नंबर ऑफ कॉपीज आपको प्रिंट कर रही हैं एक ही पेज की। ओके, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो, उसके लेआउट को देख सकते हो, आप पोर्टेबल पे निकालना चाह रहे हो या लैंडस्केप पे निकालना चाह रहे हो, पेज का साइज चेक कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जैसे हमारी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और देन एंटर या क्लिक द प्रिंट ऑप्शन। ओके, दिस इज द स्टेप टू प्रिंट डॉक्यूमेंट। After that, in this chapter you have the last topic is Microsoft Word keyboard shortcut. Okay, this is the Microsoft keyboard shortcuts. You read this carefully. Okay, ये आपको रीड करनी है और लर्न भी करनी है। जैसे कि Ctrl+H is used for find and replace dialog box, and Ctrl+P to print a document. Okay, this is the shortcut key. To use this shortcut key for print a document, Ctrl+P, and there are different types of shortcut key, so please read it and learn. I have done this
टॉपिक हियर। ओके, ये चैप्टर के सारे टॉपिक इधर फिनिश हो गए हैं। आपको ये चैप्टर रेड करना है केयरफुली। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी वर्ड्स, एनी टॉपिक, देन आस्क मी। ओके।